السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل ندلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم وتجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. سورہ صف کی 4 آیتیں ہیں. آیت نمبر 10 سے 13 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. واللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے ہمیشہ نیچے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں. ذلک الفوز العظیم. یہ ہے عظیم کامیابی. وأخرى تحبونها. اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے اللہ کی طرف سے. وأخرى تحبونها نصر من اللہ فتح قریب. ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب. وبشر المؤمنین. اور مومنوں کو اللہ رسول بشارت دے دیجیے. اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں جہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اہل کفر اس بات کو ناپسند کریں گے کہ اسلام پھلے اور پھولے، اسلام بڑھے اور اسلام کی شعائیں لوگوں تک پہنچے، کبھی اس بات کو نہیں چاہیں گے. اسی وجہ سے شروع زمانے سے آج تک بھی اسلام اور غیر اسلام والوں کا ٹکراؤ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا تا قیامت تک. اسی بنا پر اللہ العالمین نے انہیں ایک بات سمجھا دی. کہا کہ تم جتنا بھی اسلام کو یا اہل اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو یہ ہونے والی چیز نہیں. یہ وہ نور ہے جو اللہ کا نور ہے اور اس نور کو کوئی آدمی اپنے حربوں سے اپنی پروپیگنڈوں سے نہیں بجھا سکتا. اور یہ نور ایسا ہے کہ ہر گھر کے اندر، یعنی جہاں تک اسلام میں جہاں تک دنیا کی آبادی وہاں تک پھیلے گا اور پہنچے گا. اللہ تعالیٰ جو جنہیں توفیق دے گا وہ قبول بھی کرے گا اور وہاں اسلام پہنچ سکے رہے گا. ان ساری باتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 ایک اہم چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. کہا کہ وہ 2 اہم کیا ہیں؟ وہ 2 اہم باتیں یہ ہیں کہ یہ جو اسلام پھلے گا پھولے گا کوئی ایسی حقیقت ایسی روشنی نہیں ہے کہ جسے جلا دیا گیا ہے اور روشنی یا نور پھیلتا ہوا جا رہا ہے. یقین یہ جو نور جو پھیلے گی، جو روشنی جو پھیلے گی، 2 چیزوں کی قربانی کی وجہ سے. 2 چیزوں کی قربانی، یعنی اہل اسلام کی جانب سے 2 چیزوں کی قربانی ضروری ہے. ایک مال کی اور ایک جان کی. یہ دونوں قربانی ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سے ان دونوں چیزوں کی قربانی کو تجارت سے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں
तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें अल्लाह ताला के दर्दनाक सजा से तुम्हें महफूज कर दे, तुम्हें बचा दे, या तुम उससे बच जाओ क़यामत के दिन। तिजारत अल्लाह ने ताबीर की है, क्योंकि इंसान जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम को मानने वाला है, उसे दो चीजों का अमल पैरा होना पड़ेगा। एक तो माल की कुर्बानी, जान की भी कुर्बानी। जहां इस्लामी सल्तनतें हैं, इस्लामी हुकूमतें हैं, अगर वहां पर अगर इस्लाम के लिए अगर ऐसी बात आती है तो आदमी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उमूमी तौर पर माल की कुर्बानी तो जरूरी है, माल की कुर्बानी जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कई जगह पर माल के खर्च करने के ऊपर इतना उभारा और शिद्दत के साथ मुख्तलिफ अंदाज से मिसालें दे करके मुख्तलिफ से उभारा है। और यकीनन अहले इस्लाम जितनी माल की कुर्बानी देते हैं किसी और मजहब के देते नहीं, हक के लिए, बातिल के लिए नहीं, हक के लिए जितनी कुर्बानी इस्लाम वाले अहले इस्लाम जो देते हैं और अल्लाह रब्बानी की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए जितना देते हैं, दूसरे मज़ाहिब में उतना नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने इसलिए दोनों अहम चीजों के फरमाया, जिस दिन दो चीजों की जरूरत हमेशा से रही है, हमेशा से लगी रही है, एग्जाम का मालूम। अब देखिए नबी शासन की सीरत तैयबा पर आप जब नबी शासन मदीना हिजरत करके आए और कई जंगें हुई, और उन जंगों में मुसलमानों का माल भी लगा, मुसलमानों की जानें भी गई, शहादतें भी हुई, अहले ईमान को शहादतें भी नसीब हुई। तो इसीलिए अल्लाह ने से तिजारत से ताबीर करके कहा, इसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने दूसरी का पेशा फरमाया इसी बात को लेकर के, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने सौदा कर लिया है मोमिनीन से, उनके और उनके मालों, उनकी जानों के जरिए से जन्नत का मामला। ये जन्नत का सौदा अल्लाह ताला ने किन चीजों से किया? दो चीजों से, एक माल और उनकी जान, दोनों चीजों से सौदा कर दिया है। तो लिहाजा इस्लाम की तारीख रही है शुरू जमाने से कि इसकी नशो इशाअत में, इसके फैलाव में और इसकी इस्लाम की पहुंच में अहले इस्लाम की जान की भी कुर्बानियां रही हैं, माल की कुर्बानियां, अभी ताक़यामत रहेगा मामला, ये ताक़यामत रहेगा। इसलिए आज दुनिया के अंदर देखिए ये जंग और ये फसादात जो गैरों की तरफ से जानिब से है, या अहले इस्लाम के मुखालिफत में जो खड़े हुए हैं, वजह क्या है? वजह यही है कि एक अल्लाह की तरफ दावत दी जाती है, शिर्क से रोका जाता है, यही बड़ी बुनियादी सबब है। दुनिया को यही चीज पसंद नहीं आती। जैसे अंबे कराम ने तकालीफ झेली, आज अहले इस्लाम को वो तकालीफ झेलना, और ये कहिए अल्लाह की सुन्नत है हमारे लिए, आजमाइश के तौर पर, आजमाइश के तौर पर हमारे लिए अल्लाह की सुन्नत है। चनाचे अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया, तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के राह में लड़ते रहो अपने मालों, अपनी जानों के साथ। अब तिजारत किस शक्ल में है अल्लाह ने सब जिक्र कर दिया। अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के बाद नेक अमाल सालिह के बाद तुम्हें अपने आप को फायदा देंगे। जिन दो चीजें हैं वो दो चीजें ये है कि अपने मालों को रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के राह में लड़ते रहो अपने मालों, अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इस बात कायम रखे। किस बात कायम? यानी इस चीज के जरिए अल्लाह ने जो सौदा जो किया है उनसे, अगर इसकी हकीकत को तुम जानो और इसको समझो तब तुम्हारे लिए बहुत फायदा है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन शहीदों का जो मुकाम मर्तबा रखा है, बाद शहादत के जो मुकाम मर्तबा रखा है, उसकी अहमियत को तुम समझ लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब सब लोग उठाए जाएंगे, एक शहीद से अल्लाह ताला सवाल करेगा, शहीद से सवाल करेगा, बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो जन्नत में? जब अल्लाह ताला से बोले, यार भाई कोई शौक नहीं, तेरी सारी मिन्नतें हमें नजर हासिल हो गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, कहो कोई शौक अगर कोई ख्वाहिश हो, हाँ एक ख्वाहिश है, तो हमें दोबारा दुनिया में भेज, ताकि हम दोबारा से इस्लाम की राह में लड़ते हुए हम मर जाएं और तेरी नियमतें दोबारा हमें हासिल हो नए सिरे से। यही हमारी ख्वाहिश है, ये है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसी सौदे के ताल्लुक से जिक्र फरमाते कहा, तुम दुनिया जमाने लगे, तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो, तुम दुनिया की यानी इन रंगों रंगीनियों के तुम के अंदर तुम खड़े हुए हो, तुम्हें आखिरत की और इस्लाम की बका को सेफर की कोई सबर नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो लिहाजा इस बात को तुम ज़हन में रखो कि ये बहुत कीमती चीज। इसलिए मदीना मुनव्वरा में नबी के साथ जब भी
साहबे कराम के ऐलान किए जंग के मौके पर अपने मालों को लाओ, कितने वाक़यात ऐसे हैं, कितने वाक़यात ऐसे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या ग़ज़वत तबूक की मुनासिबत से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का आधा सामान लेकर के आ गए, आधा सामान लेकर के आ गए। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपना पूरे घर का सामान उठा करके लेकर के आ गए। तो लिहाजा और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहां पर ऐसी ये चीजें अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से बात। चुनांचे अल्लाह ताला ने मजीद इरशाद फरमाया, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। और वो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इस नतीजे क्या मिलने वाला आपको? तीन बात अल्लाह ने कही, वो अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हें इसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे हमेशा नहरें बह रहेंगी, और पाकीज़ा महल्लात में हमेशा रहने वाली जन्नतों में वहां तुम्हें क़याम अता फरमाएगा। ये तीन नेमत अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। फिर इसके बाद ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह ने कहा यही तो सबसे बड़ी कामयाबी मोमिन की है। क्या बाद वफात मरने के अल्लाह के बारगाह में सुरखरू हो, जन्नत उसे हासिल हो जाए और अपना दीदार नसीब हो, यही मोमिन की एक तमन्ना, यही एक आरज़ू, उसी मकसद की तरफ से पैदा किया गया। इसलिए कहा गया कि यही सबसे बड़ी तो कामयाबी है। यही बात है, एक और नेमत जिसे तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद और करीब वाली फतह, ये दुनिया के एतबार से ये करीब वाली फतह तुम अल्लाह की एक और नेमत तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। और बशरिल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा गया अल्लाह के मोमिन को बशरा दे दीजिए कि उन्हें अल्लाह ताला फतह करीब से अता फरमाएगा, उनकी मदद भी करेगा। यकीनन ऐसी मदद कि आसमान से फरिश्तों को अल्लाह ने उतारा, जंग बदर में भी, जंग उहद में भी आसमान से फरिश्तों को उतारा। अल्लाह ताला ने ऐसी मदद द्वारा और ऐसी ये खुशखबरी अपने करीब के जरिए से कि जंग मक्का फतेह करवाया। उसके बाद किस्रा की सल्तनतें गिर गई, मुसलमानों के अंडर में आ गई और इस्लामी सल्तनत फैलती चली गई। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में फैलती चली गई और काफी लंबी दूर से इस्लाम फैल गया और सारी जमीनें इस्लाम के कब्जे में आ गई, मुसलमानों के कब्जे में आ गई। तो यही फतह करीब जिससे ताल्लुक से कहा गया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल इज्जत हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के अंदर गौर फिक्र करने वाला हमें बनाए और रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत का सौदा और आखिरत की कोशिश हमें करने वाला बनाए। जब तक दुनिया में रब्बुल इज्जत में जिंदा रख, ईमान के हक में जिंदा रख, मौत दे, ईमान के हक में मौत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।